हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू TDC क्लासेस here organic chemistry by Shivam Gupta, and in previous lectures we have learned about the classification of the organic chemistry and basic rules of the IUPAC nomenclature. Okay, now आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग IUPAC nomenclature में यूज़ करते हैं वो हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या है, जैसे COH है, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि पहला हमारा पेरेंट कार्बन चेन इंक्लूड हो जाए एंड पेरेंट कार्बन चेन जो है हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो. सो अगर इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व इन पेरेंट कार्बन चेन, ओके, then prefix and suffix are changed, and if it is not involved then prefix and suffix are different. So here we can, and one more thing it is to note that principal functional group highest priority order will decide that what will be the suffix. Okay, and prefix is written beforehand and suffix is written in afterhand. And here we will learn some important functional group. We will know about it and what we have to write in prefix and suffix while doing the nomenclature. So here नोट में हम लोग एक पॉइंट सीख रहे हैं, क्या चीज़ कि अगर मतलब ये हमने जो अभी फंक्शनल ग्रुप हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, इसमें क्या है, इफ़ कार्बन एटम रिटन इन ब्रैकेट that means that it has been included in the parent carbon chain. Okay, it is included in the parent carbon chain. First we will learn about the carboxylic acid, most important one. Okay, and if carbon is involved, okay, if carbon is involved then there is no prefix. Okay, there is no prefix. And if carbon is not involved then there is a suffix of carboxy, and in prefix of carboxy, sorry, and in suffix there is oic acid, and in suffix carboxylic acid. And when we'll think about the sulfonic acid, in prefix we write sulfo and in suffix we write sulfonic acid. And here for anhydride, this is anhydride group, and here for anhydride in prefix we don't write anything, in suffix we have oic anhydride. And next functional group is ester. Okay, ester, COOR, and here it is included in parent carbon chain and it is not included in parent carbon chain. And in prefix we don't write anything, and in suffix we write alkyl OH. ठीक है, in middle there is a name of the carbon atom that is according to the IUPAC, and if carbon is not included then we write alkoxycarbonyl, and if it is in suffix we write alkyl carboxylate. And in acid halide, important one, if carbon is included then no prefix, and there is in suffix we write oil halide. And if carbon is not included then we write haloform as a prefix and carbonyl halide as a suffix. Okay, चलो बच्चों हम आगे क्या पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है. एमाइड के बारे में जानते हैं. एमाइड क्या है हमारा, CONH2 अगर हम लोग पेरेंट कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूड होता है, सो प्रीफिक्स में हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं. क्या लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं. और सफिक्स में क्या है, हम एमाइड लगाते हैं. क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं. और CONH2 में हम क्या करते हैं, अगर कार्बन एमाइड है, एमाइड में अगर कार्बन इंक्लूड नहीं है, सो वी राइट कार्बोनिल. ओके, एंड सफिक्स में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी एमाइड. ओके, अब हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है साइनाइड. ओके, साइनाइड बिकॉज it confuses as carbon is included in the parent carbon chain, then we don't write anything as a prefix and suffix. here prefix. Okay bachcho, and it is functional group. And we don't write anything as a prefix and we write nitrile
It is important to note that what is nitrile. Person confused that it might be something nitrogen atom. ओके एंड इफ़ कार्बन, अगर बच्चों कार्बन नहीं इन्वॉल्व है उसमें, तो हम प्रीफिक्स में साइन लगाएंगे और सफिक्स में क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल. ओके एंड नेक्स्ट वन वी कैन थिंक अबाउट द आइसोसाइनाइड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. इसमें प्रीफिक्स में हम लोग आइसोसाइनाइड लिखते हैं या कार्बिल एमाइनो लिखते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो सफिक्स में हम जाएंगे, सफिक्स में आइसोनाइट्राइल हो जाता है. ओके बच्चों, और एल्डिहाइड की बात करते हैं. एल्डिहाइड हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एसिड के बाद हमारा कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेफर करते हैं, एल्डिहाइड को. ओके अगर इसमें हमारा जो है इन्वॉल्व नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मिल, और इन्वॉल्व है तो ऑक्सो. और सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, अल. क्या लिखते हैं, अल. ए और एल होता है. एक हमारा ओ एल होता है, ये नहीं है, ठीक है, ए एल है. ओ एल हमारा क्या है, अल्कोहल में आता है. और इसमें अगर सफिक्स में हम अगर कार्बन इन्वॉल्व नहीं है तो क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड लिखते हैं. एंड नेक्स्ट वन इट इज़ कीटोन. कीटोन ओन हम सफिक्स में याद रख सकते हैं, ओन. ओके एंड देन इन प्रीफिक्स वी राइट कीटो और ऑक्सो. इसको भी याद रखना है. क्यों, क्योंकि ऑक्सो हमारा कितनी बार आया, 2 बार आया. कितनी बार आया, 2 बार आया. ओके बच्चों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, और कुछ फंक्शनल जैसे अल्कोहल भी हमारा इंपॉर्टेंट है. जैसे हम इसमें प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी. और सफिक्स में OH, अभी मैंने इसके पहले बताया था. इसमें क्या है, AL होता है, ये एल्डिहाइड होता है इसमें, यहाँ पे ये नहीं होगा. ओके बच्चों, समझे. ओके एंड देयर इज थायो अल्कोहल, SH. ठीक है, इसमें क्या है, नॉरकेप्टो. और सफिक्स में थायोल. एंड वन इज एमाइन, NH2 ग्रुप. एंड इन प्रीफिक्स वी राइट एमाइनो, एंड इन सफिक्स वी राइट अमाइन. ओके बच्चों, एंड नाउ आई विल से यू थैंक यू बच्चों. एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए. हम अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि IUPAC के ही होंगे. हमारा जब IUPAC के इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम अपने अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, जो कि क्या है, आइसोमेरिज्म. थैंक यू एंड बेस्ट विशेस.